So let us begin with new chapter, that is value of supply. After determining what is supply according to schedule number 1, that was without consideration. Even if it is without consideration, it will be treated as supply. Okay, it was discussed in schedule number 1 under which circumstances you will treat the things as supply, even if it is without consideration. In schedule number 2, we discussed about what is supply of goods and what is supply of services. And in schedule number 3, neither it will be supply of goods nor it will be supply of services, means negative list. So after determining what is supply, we have to take three things together. That is time of supply, place of supply, and value of supply. So we have already done time of supply. Time of supply, you have practical questions also in that. Place of supply, you need to determine as to whether you have to recognize as to whether uh, what type of tax will be applicable, IGST, CGST, SGST, or UTGST. So in case of intrastate, it will be SGST or UTGST. In case of interstate, it will be IGST. So therefore, we need to determine about the place of supply, because the type of the tax is applicable according to the place of supply. Okay, and then and time of supply, we have its importance at its own place, because at what time the goods were supplied, only then you will be able to understand when you have to pay GST to the government, when you have to remit GST to the government rather. Okay, so that is most important. Time of supply is also very important. Next, we have just a minute. Yes. So next we have value of supply. Now you have understood what type of tax is applicable according to place of supply, IGST or CGST. You have understood what type of tax is applicable. Also, you have understood, also you have got to know about time of supply. That means IGST, when it is applicable. You have understood that also. Now we need to understand on which amount GST rate will be applicable. Okay, so that you will be able to pay it to the government. I mean, you need to fetch it from your customer and remit it to the government, right? So on what value the GST rate will be applicable, and this is as per section 15. According to, when we were doing levy and collection of the GST chapter, second chapter, in that I told you this thing in short. It was value of supply as per section 15. हमने लेवी एंड कलेक्शन में ऑलरेडी एक पॉइंट पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था जो जीएसटी लेवी होता है ना, लेवी मतलब चार्ज होता है ना, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 15 वो चार्ज होता है, और सेक्शन नंबर 15 में क्या बताया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई बताया है, मतलब कौन सी वैल्यू पे आपको सप्लाई की कितनी वैल्यू है जिस पे आपको जीएसटी चार्ज होता है. So सबसे पहले तो valuation of supply under GST. Currently GST will be charged on the transaction value. Very, very important. Very important word rather, transaction value. Whatever will be your transacted value. That means आप अपना profit earn करते हुए कितने में सामने वाले को बेच रहे हैं, वो goods को आप sell कर रहे हैं, उसको कहते हैं transaction value. अभी आगे देखो लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज. क्योंकि रिलेटेड पार्टीज मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो तो विदाउट कंसिडरेशन होता है ना, उसमें तो कोई प्राइस इन्वॉल्व ही नहीं होता. ठीक है, तो वो तो विदाउट कंसिडरेशन होता है, उसमें कोई ट्रांजेक्शन वैल्यू ही नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे ना अनरिलेटेड पार्टीज लिखा हुआ है. ठीक है, एंड इन विच प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. ना ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर तो मैं पूरा लेक्चर भी ले लूँ तो भी कम है, लेकिन अभी के लिए हम उसको जिस्ट समझेंगे उसका. व्हाट इज द जिस्ट ऑफ प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन.
Price is the sole consideration means suppose you are selling me a commodity, उसके अगेंस्ट में आप मुझसे प्राइस भी चार्ज कर रहे हैं, और आपने मुझसे ये भी कहा कि आप अगेंस्ट में ना इसके मुझे आप अपने शॉप पे जो चीज है ना वो बेच दे। मतलब आपने क्या किया, दोनों चीजें मुझसे ली, बाटर सिस्टम भी इन्वॉल्व है, प्राइस भी इन्वॉल्व है। मतलब सिर्फ आप प्राइस नहीं चार्ज कर रहे हैं मुझसे, आप उसके अगेंस्ट में मुझसे कुछ और भी ले रहे हैं, तो वो फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं माना जाएगा। ट्रांजेक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। या तो आप अभी ऑन द स्पॉट पे कर रहे हैं, या तो आप गुड्स खरीद के जाकर 1 महीने के बाद पे करेंगे, 2 महीने के बाद पे करेंगे। पेएबल उसको बोलते हैं, पेएबल इन द फ्यूचर। ओके, होता है ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन चलते हैं ना, जैसे कि गुड्स तो आज खरीद के गए लेकिन पेमेंट बाद में करेंगे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर, किसके लिए आप ये प्राइस पे करते हो, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब तक आप सप्लाई नहीं करोगे तब तक आप कौन सा वैल्यू चार्ज करेंगे सामने वाले से। सो फर्स्ट यू नीड टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज। अच्छा, किसको सप्लाई कर रहे हैं, अनरिलेटेड पर्सन। अनरिलेटेड मीन्स जैसे शॉपकीपर कस्टमर को गुड्स सप्लाई करते हैं तो वो अनरिलेटेड हो गए ना। ठीक है, तो जैसे हेड ऑफिस अपने ब्रांच को सप्लाई कर रहा है तो वो तो डिस्टिंक्ट पार्टीज हो गई ना। अब वो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, इट शुड बी अनरिलेटेड। ओके, रिलेटेड पार्टीज नहीं होनी चाहिए, जैसे फैमिली मेंबर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि फैमिली मेंबर्स में अगर कोई चीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रही है तो उसके लिए वो प्राइस थोड़ी चार्ज करते हैं। एग्जाम्पल, फादर अगर कुछ सन को दे रहा है तो वो उससे प्राइस थोड़ी चार्ज करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज, तभी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू आता है, तभी तो ट्रांजैक्शन होता है ना। आप अपने ही बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हो, आपका ही बिजनेस एक जगह पे है, दूसरे प्लेस पे भी आपने बिजनेस ओपन किया, एक गोडाउन से निकालकर दूसरे गोडाउन पे आपने गुड्स को ट्रांसफर किया, सप्लाई किया, तो उसके लिए आप प्राइस थोड़ी चार्ज करेंगे, है ना। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ तो वैल्यू किधर से आएगी। It should be a transaction, and always remember transaction is between unrelated person. ठीक है, समझ में आया, ये क्लियर हुआ। तो जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे बेस्ड है, जितनी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उतना जीएसटी चार्ज होगा। हाँ, कितना जीएसटी का रेट क्या होगा वो तो डिपेंड करता है ना गुड्स और कमोडिटीज और सर्विसेज का जो टाइप है ना, वो तो डिपेंड करता है। 5% वाले गुड्स भी हैं, 12% वाले भी हैं, है ना, 18% वाले भी गुड्स हैं, 0% वाले भी होते हैं। जैसे आप फ्रेश फ्रूट्स खरीदने जाओ तो वो 0% के रेट में आते हैं। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने जाओ तो वो 18% स्लैब में आती है ना। तो वो तो अभी गुड्स एंड कमोडिटीज के जो टाइप्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि जीएसटी का रेट क्या एप्लीकेबल होगा। हम बात कर रहे हैं, हम जीएसटी के रेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कौन से वैल्यू पे जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा। हम वैल्यू को फोकस कर रहे हैं, मतलब आपने कोई एक चीज 10 रुपए में बेची तो 10 रुपया जो है ना वो ट्रांजेक्शन वैल्यू है। ठीक है, तो 10 रुपए पे आपका जीएसटी चार्ज होगा, 5%, 12%, 18%, वॉट एवर द रेट इज, बट वो कौन से वैल्यू पे चार्ज होगा मैं वो वैल्यू की बात कर रही हूँ। सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। थियोरी की पॉइंट्स पढ़ी हुई होंगी, आप इतना ही पढ़े, ये जो मैं आपको स्लाइड्स में दे रही हूँ ना ये इसमें सब कुछ कवर्ड है। आप इतना भी पढ़ेंगे ना आपके एमसीक्यूज फुल ऑन फुल जाएगा। ठीक है। So don't worry about referring to another textbooks. See, even if you want to do it, I don't mind that. In fact, you will be getting extra knowledge. But right as of now, you are already in shortage of days, number of days. I hope you know after 15 December you will be having your exams. Okay, so you need to prepare yourself with whatever you have now. Don't try to hunt for another things. ठीक है, जितना है उसमें आप पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए, we will explain and elaborate that part. Okay, so in this chapter we are going to study about the value of GST, value of supply under GST. Now what is very important is what it includes.
ध्यान से सुनना। हाँ, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है देखो, जब हम किसी से वैल्यू चार्ज करते हैं ना, सप्लाई सप्लाई करते हैं, जब हम किसी को कुछ बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, तो उस टाइम पे हम सामने वाले से एक प्राइस चार्ज करते हैं, उसी प्राइस को हम कहते हैं वैल्यू। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उस वैल्यू में क्या क्या आप लेते हो सामने वाले से, आप खुद हिसाब लगाइए ना, आप क्या क्या लेते हैं। गुड्स बनाने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने का प्राइस भी मतलब इंक्लूड होता है। आप अगर कुछ पहले टैक्सेस भरे हुए होते हैं तो आप उनसे वसूल करते हैं ना, कस्टमर से फीस चार्जेस जो आप लोगों के ऊपर लग चुकी है, वो भी आप उनसे वसूल करते हैं। ठीक है, तो वो भी इंक्लूड होती हैं। प्राइस में वो भी खर्चे इंक्लूड होते हैं जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, सच एज गुड्स की पैकिंग वगैरह। आपने ना, आप मैन्युफैक्चरर थे, तो आपने गुड्स को पैकिंग कर कर लेबलिंग करके, उसके ऊपर भी तो खर्चा होता है। पैकिंग का जो मटेरियल होता है वो भी तो देखो झाड़ से तो नहीं निकलता, फ्री में तो नहीं मिलता। यू हैव टू पे फॉर पैकिंग मटेरियल ऑल्सो। ठीक है, तब जाके आपको पैकिंग मटेरियल बन के मिलता है। जब आप ऑर्डर करते हैं, खर्चा करते हैं, तब जाके आपको पैकिंग मटेरियल मिलता है। पैकिंग मटेरियल मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। मतलब जैसे एक ड्रेस मटेरियल है, तो सीधा उठाकर कोई ड्रेस मटेरियल आपको नहीं देते, उसको पैक करके दिया जाता है ना। तो जो पैकिंग मटेरियल होता है, किसी को देखो कोई बहुत अच्छा शॉप पे शोरूम में चले गए तो उनका पैकिंग मटेरियल बहुत अच्छा होता है, बैग टाइप देंगे आपको। ठीक है, सील बैग टाइप होते हैं। कोई तो एक सिंपल पॉलीथीन होती है उनके पास, वैसी टाइप। लेकिन खर्चा तो हर किसी को करना पड़ता है पैकिंग के ऊपर। ठीक है, अब सेल्समैन होते हैं जो एक गोडाउन से निकाल कर गुड्स को आपके शोरूम तक पहुंचाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होते हैं, जब जब गुड्स मैन्युफैक्चरिंग तो हो गई, लेकिन अब उस मैन्युफैक्चरिंग के गोडाउन से निकाल कर आपको गुड्स को शोरूम तक लेकर जाना है, तो उसके लिए भी तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डिलीवरी मैन चाहिए, उसको सैलरी देनी है ना। और जो जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है उसका पेट्रोल भराना है, उसका खर्चा है ना, मेंटेनेंस का खर्चा, गाड़ी का डेप्रिसिएशन, ये सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं। ये सारे आपको इंक्लूड करने होते हैं एक्सपेंसेस, किसमें, प्राइस में। क्यों? क्योंकि आपने जब गुड्स बनाए थे उसके ऊपर ही खर्चा हुआ था। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम इंक्लूड करते हैं, देखो, एनी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस, आपने भी तो ये सारे भरे हुए हैं, तो ये आप सारे इंक्लूड कर देंगे उसमें। लेकिन एक्सेप्ट जीएसटी, जीएसटी नहीं इंक्लूड करना है। जीएसटी तो हम लास्ट में चार्ज करते हैं। आपने जितनी वैल्यू डिसाइड कर ली, एक फाइनल वैल्यू बता दो आप, 10,000 में प्रोडक्ट बेच रहे हो कि 9,000 में, 9,000 में बेच रहे हैं कि 10,000 में, एक वैल्यू डिसाइड कर लो। अब पक्का हो गया कि 10,000 में ये प्रोडक्ट बिका जाएगा, ठीक है, बेचा जाएगा, तो अब उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगी ना। तो जीएसटी पहले ही कैसे इंक्लूड कर देंगे? अगर इनफैक्ट इंक्लूड है तो पहले मुझे निकालना है अमाउंट में से जीएसटी, निकाल कर फिर वैल्यू बतानी कि ये वैल्यू है फाइनल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो जीएसटी कभी भी इंक्लूड नहीं होती है वैल्यू में, वो तो हम चार्ज करेंगे बाद में। सो एक्सेप्ट जीएसटी, देखो लिखा भी हुआ है, इफ आई हाईलाइट दिस, आपके लिए मैंने हाईलाइट किया, देखो स्क्रीन पे, एक्सेप्ट जीएसटी। और जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस विल बी एक्सक्लूडेड इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर। ठीक है, ये एक्सक्लूड करना होता है। सेकेंड होता है आपका any amount that the supplier is liable to pay which has been incurred by the recipient and not included in the price। ऐसा कोई और अमाउंट जो आपने खर्चा कर रखा है लेकिन प्राइस में नहीं दिख रहा है, तो वो भी आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अभी आपको पता है कि बिल में ना आपको दो तीन चीजें एक साथ दिखती हैं, कि ये तो अभी जैसे आप कॉलेज की फीस भरते हो, तो कॉलेज की फीस में सिर्फ फीस नहीं होती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। जिम खाना फीस एंड आईवी फीस होती है, फिर उसके बाद ट्यूशन फीस होती है ना। बहुत सारे खर्चे होते हैं दूसरे भी जो आप भर रहे होते हैं। तो वो भी तो वैल्यू में इंक्लूड होना चाहिए ना, दिखना चाहिए वो वैल्यू में कि सामने वाला रेसिपिएंट ये खर्चा कर रहा है, भर रहा है आपको। रेसिपिएंट ने गुड्स खरीदते समय ये खर्चे भरे हैं, तो वो भी आपको वैल्यू में इंक्लूड करके बिल में दिखाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, value will value will include all incidental expenses such as packing, commission paid to selling agents, transportation expenses, etc। है ना, ये सारे खर्चे भी तो इंक्लूड करने, जैसे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एक्सेट्रा।
नेक्स्ट है आपका सब्सिडीज लिंक टू सप्लाई। अब लेकिन गवर्नमेंट वाली सब्सिडीज नहीं, जो आपको सब्सिडीज गवर्नमेंट के अलावा अगर मिल रही है कुछ, अगर मिल रही हैं तो, जैसे एक्सपोर्ट कोई एजेंसी है, सपोज कोई एक्सपोर्ट एजेंसी है और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, तो एक्सपोर्ट करने के लिए वो एक्सपोर्ट एजेंसी आपको सब्सिडीज दे रही है, ठीक है, सब्सिडीज जो देती है, तो वो भी आप सप्लाई से लिंक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आप जितना सप्लाई करते हो उसके ऊपर ही तो आपको सब्सिडीज मिलती हैं, तो वो भी आपको वैल्यू में इंक्लूड करना है, ठीक है ना। लेकिन जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है ना वो नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट वाली सब्सिडीज ज्यादातर है ना एग्जाम्प्टेड होती है ज्यादातर, इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट होता है आपका इंटरेस्ट, लेट पेमेंट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन। सपोज इसका मैं एग्जांपल देती हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। सपोज आप मेरे कस्टमर है, आपको मुझे पेमेंट करनी चाहिए थी, गुड्स खरीद के गए आप, आपको मुझे पेमेंट करनी चाहिए थी 2 मंथ्स में, 2 मंथ्स पकड़ लीजिए सितंबर में पूरे हो रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए 2 मंथ्स आपके सितंबर में पूरे हो गए, लेकिन आपने मुझे सितंबर में पेमेंट नहीं किया, you did not pay me in the month of September. That was the due month on which, I mean, in which you was supposed to pay me, but you did not pay me. So what will happen? I will charge interest. I can charge late payment fees from you. तो आपने मुझे जो late payment fees दिया, interest दिया ना, that payment also shall be included in the value. मतलब आप रेसिपिएंट से जो जो खर्चे करवा रहे हैं, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द प्राइस, इन द वैल्यू, ठीक है। सो ऑल दीज एक्सपेंसेस शुड बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? एनीबडी? एनीवन? बहुत सिंपल है। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? जब उसको बेचा जाता है तो उस टाइम की जो वैल्यू चार्ज कर रहे हैं आप, उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, बस उतना पढ़ा अभी तक हमने, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू देखो, एज पर मैंने आपको चैप्टर के पहले ही बताया, ये तो एज पर सेक्शन 15 बताता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है। एज पर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट 2017, the transaction value is the value of taxable supply. Very important, very important. It can be asked in MCQs also. The transaction value is the value of dash under GST. Taxable supply, exempted supply, है ना, ऐसे पूछा जा सकता है। जीरो रेटेड सप्लाई, तो आपने आंसर क्या करना है? टैक्सेबल सप्लाई। कॉमन सेंस है, उन्हीं गुड्स पे टैक्स लगाई जाएगी ना, GST लगाई जाएगी जिनकी वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई के अंडर में आती है। अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया, मतलब एक्सपोर्ट किया, तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर GST चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई वाला तो उस पे वो ट्रांजैक्शन वैल्यू तो हम बोलेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर GST नहीं है एप्लीकेबल, एग्जम्प्टेड है वो। नॉन टैक्सेबल मतलब वो एग्जम्प्टेड है, समझा अभी? तो टर्म ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड एज, ट्रांजैक्शन वैल्यू को क्या डिफाइन किया गया है? देखो कैसे डिफाइन किया गया है। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल अंडर फॉर फॉर अंडरलाइन गुड्स और सर्विसेज। दैट मीन्स जो आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जिसमें आप डीलिंग कर रहे हैं, जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसको आप बाय करके सेल कर रहे हैं, उसे कहते हैं अंडरलाइन गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो अंडरलाइन गुड्स एंड सर्विसेज है, वो बेचने का जो प्राइस आप चार्ज करते हो उसे कहते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू है ना, किसके बीच में होता है? बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज, बिटवीन सप्लायर एंड द रेसिपिएंट ऑफ सच सप्लाई are not related parties, are not related person। वो related नहीं होनी चाहिए, मतलब आपस में उनका कोई रिलेशन, रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। और रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन हम इसके पहले जो चैप्टर किया था, मतलब सप्लाई, सप्लाई वाला चैप्टर किया था ना, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, तब हमने रिलेटेड पार्टीज में कौन कौन होता है वो हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इफ यू डोंट रिमेम्बर, लिसन टू द प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डिंग्स, आपको याद आ जाएगा कि रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं। यहाँ PPT रेफर करो, ठीक है। थर्ड, प्राइस ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड इज द ओनली कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजेक्शन वैल्यू का ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सारी पॉइंट्स आ गई। अब जो आप प्राइस चार्ज करते हो ना गुड्स को सप्लाई करने की, सर्विसेज को सप्लाई करने की, शुड बी ओनली कंसिडरेशन। उसके अलावा आप ये नहीं कह सकते कि आपने मुझे घर के पेपर्स भी गिरवी रखने पड़ेंगे और कुछ मेरे से लोन लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा इसके अलावा नहीं। ठीक है, तो प्राइस शुड बी द ओनली कंसिडरेशन। प्राइस मीन्स जो आप कुछ खरीदने के लिए जो आप प्राइस पे करते हो ना, दैट शुड बी द ओनली कंसिडरेशन। सिर्फ वो ही प्राइस होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो डिस्कस किया है उसके हिसाब से जो एग्जाम्पल बनता है वो देख रहे हैं, ठीक है ना। लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ एबीसी, अ मैन्युफैक्चरर। अब एबीसी कंपनी कौन है? अ मैन्युफैक्चरर है। आई मीन कंपनी नहीं, सॉरी, एबीसी एक पर्सन का नाम है जो मैन्युफैक्चरर है। सेलिंग टूल्स एंड हार्डवेयर लाइक ड्रिल्स, पॉलिशर्स, स्पेड्स। अभी आपको ड्रिल दिख रहा है? ये पिक्चर में मैंने एक पिक्चर लगाया है यहाँ पे ड्रिल का। हिमांशु, यू हैव एनी डाउट्स? यू कैन आस्क यस मी। मैम, ट्रांजेक्शन वैल्यू का थर्ड पॉइंट थर्ड जो था ना, पॉइंट, ट्रांजेक्शन वैल्यू इंक्लूड्स। ओके। मैं फिर से बताती हूँ। आप सपोज अभी है ना एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। अभी आप रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हो तो आप क्या पे करते हो? बिल का अमाउंट पे करते हो ना, उसके अलावा भी कुछ पे करते हैं क्या? नहीं, उसके अलावा तो कुछ नहीं पे करते हो। तो सिर्फ आप प्राइस पे करते हो। आप ऐसे बोलते हो होटल का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपको भरना है। ओनर आपको ऐसे बोल सकते हैं? होटल का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी कस्टमर को भरना है, ऐसा बोलते हैं? नहीं। आपने खाना खाया, आप उसकी प्राइस भर रहे हैं, उसमें सब इंक्लूड आ गया ना। इलेक्ट्रिसिटी का बिल और मेंटेनेंस चार्जेस, वो सब इंक्लूड कर लेते हैं आपको बिना बताए। खाना बनाने का चार्जेस, वेटर को जो देना होता है फीस, वैल्यू, सैलरी, वो सब इंक्लूड कर दिया जाता है। उसमें सब इंक्लूड ऑलरेडी होते हैं, तो उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे करते। अब आप रेस्टोरेंट जाते हो तो या आपसे ओनर ये नहीं बोल सकता इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे कर दीजिए। खाना खाने का बिल तो पे कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे कर दीजिए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये बोलने का, मेरे एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है, प्राइस शुड बी द ओनली कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन मीन्स जब आप कोई चीज खरीदते हो तो उसके अगेंस्ट में, कंसिडरेशन मीन्स उसके अगेंस्ट में आप शॉपकीपर को क्या पे करते हो? प्राइस। जो प्राइस पे करते हो उसके अलावा थोड़ी कुछ देते हो। आप घर के पेपर्स गिरवी रख के आते हो जब आप कोई ड्रेस मटेरियल खरीद के आते हैं, शूज खरीद के आते हैं, बैग्स खरीद के आते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं बोला जाएगा ना कि इसके अलावा भी कुछ आप मुझे दे दो। समझ में आ रहा है? अब दो बिजनेसमैन है, सपोज, चलो मैं एग्जांपल चेंज करती हूँ। दो बिजनेसमैन है, एक का शूज का फैक्ट्री है और एक का बैग्स का फैक्ट्री है। अब शूज बनाने वाला बैग की फैक्ट्री में गया और उसने कहा आप मुझे ना इतने इतने के बैग्स दे दीजिए और मुझसे मुझसे आप इतना प्राइस चार्ज कर दीजिए और बाकी का मैं आपको बैग, अपने शूज सप्लाई करूंगा। तो ये तो दो चीजें इन्वॉल्व हो गई ना। एक तो आप उसका प्राइस भी पे कर रहे हैं और ऊपर से आप उनको ये भी बोल रहे हैं कि आप बाकी की जो वैल्यू है उसका आप मुझसे क्या खरीद लीजिए? शूज खरीद लीजिए मुझसे। तो ये तो, इसमें तो दो प्राइस इन्वॉल्व हो गई, एक कैश वैल्यू और एक इन्वॉल्व हो गया बार्टर सिस्टम। अभी क्लियर हुआ मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसमें जो है ना वो एक ही कंसिडरेशन होना चाहिए। प्राइस शुड बी द ओनली कंसिडरेशन। प्राइस मीन्स मॉनेटरी वैल्यू। प्राइस मीन्स जो आप पे करते हो ना सामने वाले को, सिर्फ वो इंक्लूड होना चाहिए और कुछ इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है हिमांशु, क्लियर है? यस मैम। ओके, so we were here with the example. Okay, so let me read out once again. Let us consider an example of ABC, a manufacturer. अब ये मैन्युफैक्चरर है किस चीज का? हार्डवेयर, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बनाने का, ड्रिल्स, पॉलिशर, स्पेड्स। ठीक है, आई होप आपको समझता है स्पेड और पॉलिशर क्या होते हैं। मशीन होती है ना पॉलिश करने की, जो स्पेड मतलब जो खोदने वाली, जब हम खोदने जाते हैं कोई जमीन पे तो स्पेड चाहिए होता है ना आपको। ये वो चीजों की बात कर रहे हैं। ड्रिल, ड्रिल का तो आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रहा है, राइट हैंड साइड में छोटा सा रेड कलर का। ठीक है, तो
ये जो इक्विपमेंट्स है ना, टूल्स एंड इक्विपमेंट, हार्डवेयर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये बनाकर बेचने का काम है किसका? मेसर्स एबीसी, अ मैन्युफैक्चरर। इट सेल्स अ पावर ड्रिल। पावर ड्रिल समझते हैं ना? तो पावर ड्रिल ये देखो दिख रहा है बाजू में, पावर ड्रिल बेच रहे हैं टू एक्स वाई जेड अ होलसेलर। अभी एक्स वाई जेड कौन है? होलसेलर। एबीसी कौन है? मैन्युफैक्चरर है। उनको आपने क्या बेचा? पावर ड्रिल बेचा। द एमआरपी इज ₹5500, बट है वैसे तो एमआरपी 5500 है, लेकिन आप बल्क में खरीद रहे हैं ना, आप तो होलसेलर है, एक्स वाई जेड होलसेलर है। तो इसीलिए एबीसी ने सोचा कि क्योंकि ये बल्क में खरीदते हैं तो क्यों ना इनको डिस्काउंट दिया जाए। ठीक है, तो फाइनल फाइनल दोनों के बीच में प्राइस क्या डिसाइड हुई? 3000, ना कि 5500। अगर आप देखेंगे एमआरपी कितनी है उसकी? 5500, लेकिन एबीसी ने उनको फाइनल प्राइस क्या कोट किया? 3000। चलो पकड़ लो, ड्रिल का जो रेट है वो 18% है। ऐसा मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ड्रिल का जो जीएसटी का रेट है वो 18% है। और कुछ नहीं बोला है तो विद इन द स्टेट होता है। कुछ नहीं बोला है अगर क्वेश्चन में, तो आपको ऐसे समझना है हमने विद इन द स्टेट अप्लाई किया। विद इन मतलब इंट्रा की इंटर? इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट? इंट्रा। वेरी गुड, इंट्रा। इट शुड बी इंट्रा स्टेट। विद इन द स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट। अभी कुछ ही नहीं बोला ना कि एक्स वाई जेड महाराष्ट्र के अंदर ही है कि महाराष्ट्र के बाहर है। सपोज एबीसी महाराष्ट्र के, तो आपको ऐसे समझना है एक्स वाई जेड भी महाराष्ट्र की, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं बोला है इसलिए। तो अभी हम कैसे एप्लीकेबल होगा? जीएसटी का रेट कितना है? 18%। वैल्यू कौन सी लोगे? 3000 लोगे, इतना तो पक्का पता चल गया। 3000 लेंगे डिस्काउंट काट के, ठीक है? तो 5500 में से जितना डिस्काउंट काटा उसको माइनस करके आप फाइनल वैल्यू क्या चार्ज कर रहे हैं? 3000। सो पावर ड्रिल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3000। ये देखो यहाँ पे बना हुआ है। और जीएसटी का रेट कितना एप्लीकेबल है? 18%। क्योंकि विद इन द स्टेट है, इसीलिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में 50-50% एलोकेट हो जाएगा। तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 9। एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 9। आधा आधा, 18 का 50-50%। अब एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा? 3000 के ऊपर। सिंपल। 3000 के ऊपर आप देखो, दो मेथड जो थे, आप कोई भी मेथड लगा लो। 3000 के ऊपर 18% निकालो, उसको आधा आधा करके 270 करके डिवाइड कर लो। या आपको चाहिए 3000 का 9% निकालो, इट विल बी ऑलरेडी आधा वाला अमाउंट। सो 270 आप कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हो, जिसको आपको सिर्फ बाइफरकेशन करके लिखना है। अब क्या होगा? अब देखो क्या होगा, वैल्यू प्लस जीएसटी आप कस्टमर से चार्ज करेंगे। देखो वैल्यू अलग होती है, जीएसटी अलग होती है। तभी तो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, प्लीज कंफ्यूज मत होना, तभी तो यहाँ पर लिखा हुआ था एक्सेप्ट जीएसटी। सब इंक्लूड होता है इसमें, लेकिन जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है, वो हम इंक्लूड करते हैं, वो हम ऐड करते हैं। इंक्लूड मतलब उसको हम बाद में ऐड करते हैं वैल्यू निकालने के बाद। once we have determined the final value of the commodity of the goods, then GST has to be charged, then GST has to be added. And why it is to be added, why it is not deducted? Because मैं आपको बेच रही हूँ, तो मैं तो आपसे जीएसटी चार्ज करूंगी ना। तो 3000 तो मैं आपसे ले ही रही हूँ, प्लस मैं आपसे कितना ले रही हूँ? 540। मैम ये 540 कहाँ से आया? 540 कहाँ से आया? 270 सीजीएसटी ले रही हूँ, 270 एसजीएसटी ले रही हूँ, मतलब आपने मुझे टोटल टैक्स कितनी पे करी? 540। 3000 तो पे करोगे ही करोगे, प्लस 540 जीएसटी भी पे करोगे। अब आप रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाने का बिल भरते हो आपसे, तो बिल में देखा करो, वैल्यू तो लिखी होती है कि आपने इतनी रोटीज ऑर्डर करी, इतना पापड़ ऑर्डर करा, ये इतना दो प्लेट आपने दाल ऑर्डर करी थी, है ना? तो ये सब लिखा होता है, देखो वन बाय वन ऐसा मेनू का वो लिखा होता है चार्जेस के साथ आपके बिल में, कि आपने क्या क्या ऑर्डर करा, उसका रेट क्या था, है ना? और ऐसा भी लिखा होता है पर रोटी का, एक रोटी का रेट इतना है, तो आपने 3 रोटी ऑर्डर करी, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस मच। एक रोटी का रेट है 30 रुपीज, आपने 3 रोटीज ऑर्डर करी, सो 3 into 30 इज 90 रुपीज, तो बाहर लिखा होगा 90।
आपने देखा होगा कभी बिल, अभी नहीं देखा है ना तो आगे से देखिए, आपको जानकारी मिलेगी। तो आपको जो बिल है ना उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, आपने ये खरीदा, उसका ये प्राइस है, उसका टोटल प्राइस इतना है और उसके ऊपर जीएसटी इतना चार्ज किया, तो फाइनल अमाउंट आप ये भरेंगे, 3540 रुपीज आप फाइनल अमाउंट पे करते। क्लियर है एग्जाम्पल? आगे बढ़े। सी 2 minutes आर लेफ्ट फॉर दिस लेक्चर, so we will have of course I am going on। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड, पर जैसे ही ये 2 minutes पूरे हो जाएंगे ना तो हम 5 minutes की ब्रेक लेकर फिर लेक्चर ज्वाइन करेंगे। ओके, चलो देखो, what is excluded? See, suppose you did not understand anything, please let me know, so मैं I'll stop myself and repeat to the previous one। Okay, what is excluded while determining the value of supply? अब वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या नहीं लिया जाता, एक ही स्लाइड है, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत इजी है। एनी अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बिफोर, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई में काउंट नहीं होगा, जो फाइनल, मतलब बिफोर नहीं, फाइनल जब आप गुड्स को बेच रहे हैं ना उसके बाद जो डिस्काउंट दिया ना वो काउंट करना है। अभी ये इसका पर्पस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बिल तो हम फाइनल कब बनाते हैं, बेचने के बाद। जब बिल बनाया जाता है ना, बेचने के बाद बनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं फाइनल टैक्स इनवॉइस। जो टैक्स इनवॉइस बनाया जाता है ना उसमें वो होता है आपका फाइनल बिल, जो बेचने के बाद बनाते हैं और सप्लाई करने के बाद बना रहे हैं आप, और उसमें जो फाइनल डिस्काउंट होता है वो डिस्क्लोज होते हैं। यानी कि जो आपने पहले डिस्काउंट की बात करी हुई थी ना, वो तो है नहीं, बस आपने बार्गेनिंग कैसे करते हैं हम बेचने खरीदने से पहले, तो वो एप्लीकेबल नहीं होता है, वो डिस्काउंट नहीं लेना होता है कभी भी। अगर क्वेश्चन में दिया भी हुआ है बिफोर बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई इतना डिस्काउंट था तो वो नहीं लेना। प्रोवाइडेड such a discount has been duly specified in the invoice issued for a supply। अच्छा, तो जो डिस्काउंट ले रहे हो आप, प्रोवाइडेड मीन्स एक शर्त है, अगर डिस्काउंट को आप दिखा रहे हैं, काट के ले रहे हैं, उसकी एक शर्त है। प्रोवाइडेड मीन्स देयर इज अ कंडीशन दैट सच डिस्काउंट हैज बीन स्पेसिफाइड इन द इनवॉइस, मतलब आपको इनवॉइस में दिखाना पड़ेगा कि इतना इतना मैंने डिस्काउंट कस्टमर को दिया, सो फाइनल वैल्यू इज आफ्टर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो दिखाना पड़ेगा ना बिल में। बिल मतलब टैक्स इनवॉइस। क्लियर है सबको इतना पॉइंट? So this was the first point which is excluded from determining the value of supply। अगर इंक्लूड करना है तो वो टैक्स इनवॉइस में दिखाना चाहिए आपको, शो